Good morning, student. I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. Today I am going to say on the topic of vegetation and wildlife. This is the third chapter of class 8 in SST. Our first topic is natural vegetation. Do you know what are natural vegetation? The vegetation which we are getting from the nature, that is called natural vegetation. It's depend on two factors: temperature and rainfall. Where the rainfall is heavy, we will get a lot of trees. Where the rainfall is less, we will get very less amount of trees. And our next topic, classification of resources. Classification of resources. Here is it has been grouped on three. It has been divided into three groups: tropical hardwood forest, second Mediterranean forest, and third one is temperate softwood forest. Then there is a code to learn these three headings. Hot, mera, temperature. Hot means hot, tropical hardwood forest. Mediterranean means mera means Mediterranean forest, and temperate means temperature. Temperature means temperate softwood forest. By this way you can easily learn. Okay, our first topic is tropical hardwood forest. It has been categorized into two groups. First is tropical evergreen forest and second one is tropical deciduous forest. Then first is tropical evergreen forest. Tropical evergreen forests are known as tropical rainforest, and they do not shed their leaves. And the best example where these forests are found are Zaire Basin, Amazon Basin, where the snakes are very heavy, Southeast Asia, Western Ghat in India, just like Kerala, Karnataka belt, Andaman and Nicobar Island. Do you know the capital of Andaman and Nicobar? Port Blair. Northeast eastern part of India. And do you know the rainfall is about 200 centimeter, and trees are heavy. Trees are very tall in height, almost 60 meter in height. And do you know the name of trees which are found in this area? They are ebony, rosewood, rubber, mahogany, palm. I have a code to learn these five trees. A, Ruma, Rojam khao. A means ebony, Ru means rosewood, Ru means rubber, Ro means rosewood, Ma means mahogany, Palm means Am means palm. And do you know the animals which are found in this area? The animals are elephant, lemur and monkey. देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है क्या? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं. ये साल भर हरे भरे रहते हैं क्योंकि ये अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं. ऐसे पेड़ पौधे जायरे बेसिन में मिलते हैं, अमेजोन बेसिन जहाँ पर बड़े बड़े स्टैक मिलते हैं वहाँ पर, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न घाट, भारत का पश्चिमी घाट जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और भारत के पूर्ववर्ती क्षेत्र में जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, लाइक दैट. और यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और यहाँ के जो पेड़ होते हैं 60 मीटर से ऊपर होते हैं हाइट में. और बहुत सारे एग्जाम्पल है एबोनी, रोजवुड, रबर, महोगनी, पाम. ये सारे पेड़ हैं जो कि इस क्षेत्र में मिलते हैं. इसके लिए मैंने कोड बताया है. ए से एबोनी, रू से रोजवुड, रू से रबर, म से महोगनी, रो से रोजवुड, पाम मीन्स आम मीन्स पाम, एंड एनिमल्स elephant, lemur and monkey. Next topic is tropical deciduous forest. These forests are known as monsoonal forest,
And do you know the area where these deciduous trees are found? In India, Myanmar, China, America. And do you know the climate, where the climate is hot and rainfall is about 100 to 200 centimeter, monsoonal forests are found. And trees have broad leaves and they shed their leaves. The special variety of these tropical deciduous trees is they shed their leaves, and their height is 30 to 400 meter. And the example of these trees are sal, sesame, bamboo, sandalwood, teak, eucalyptus. Here is a quote to learn these trees. ससी बस्ता लेके यू गई. स means sal, C means sesame, basta means bamboo, sandalwood and teak, and you means eucalyptus. And do you know the animals which are found in this area? Lion, tiger and reptiles. देखिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्री ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, इनको पतझड़ वन कहते हैं, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं. इनको पतझड़ कहते ही हैं क्योंकि ये पत्ते अपने साल के एक ऐसा मौसम होता है जिसमें ये अपने सारी पत्तियों को गिरा देते हैं. और ये पाए कहाँ जाते हैं? भारत, म्यांमार, चाइना. ये देखो भारत से सटे हुए क्षेत्र हैं, ठीक है. तो अमेरिका, और इनका जो क्लाइमेट है हार्ड क्लाइमेट में मिलते हैं. और रेनफॉल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है. और इनके पत्ते जो है बहुत चौड़े होते हैं. और इनकी हाइट जो है 30 से 40 मीटर होती है. और एग्जाम्पल क्या है? साल, शीशम, बम्बू, सैंडलवुड, टीक, यूकेलिप्टस. आई हैव ऑलरेडी गिवन अ कोड. ससी बस्ता लेके यूके गई. स से साल, सी से शीशम, बम्बू से बस्ता मतलब ब से बम्बू, स से सैंडलवुड और त से टीक, यू से यूकेलिप्टस. एंड एनिमल्स लायन, टाइगर एंड रेप्टाइल्स. ओके. Our next point is hot mera temperature. Then mera means Mediterranean forest. They are found in the Mediterranean Sea. Do you know where is Mediterranean Sea? Between Europe and Africa. This Mediterranean Sea is located. So Mediterranean Sea, Europe, Asia and North America. And do you know it receives moderate amount of rainfall during winter. And trees have spiny, waxy means मोम जैसा, waxy, small and long root because they want to take water, so they have long roots. And thick barks, इनकी छाल जो है मोटी होती है. And it has a capacity to retain moisture. The example of these trees: cork, olive means जैतून, olive, citrus, नींबू. And animals which are found in this place: golden jackal, mouflon, भेड़ को बोलते हैं, पहाड़ी भेड़, बेजार कोट एंड गेको, ये छिपकली है. देखिए, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ऐसे क्षेत्रों में मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया में मिलता है. मेडिटेरेनियन सी कहाँ है? यूरोप और अफ्रीका के बीच मेडिटेरेनियन सी मिलता है. और उन क्षेत्रों में और यूरोप और एशिया में भी मिलता है. ये नॉर्थ अमेरिका के अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये मिलता है, नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है. यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी है, वहीं पर ये मिलता है. और ये मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर औसत बारिश होती है जाड़े में. और ट्रीज हैव स्पाइनी वैक्सी, मोम की तरह होता है. और इसकी जड़ें जो है बहुत लंबी होती हैं और ये छोटे होते हैं. और इनकी छाल जो है कैसी है? थिक है. और इसमें कैपेसिटी होती है कि नमी को अपने अंदर सोखे. और ये स्पेसिफिक नहीं. इनके एग्जाम्पल हैं कॉर्क, ओलिव जैतून को बोलते हैं, सिट्रस नींबू बोलते हैं, और गोल्डन जैकॉल, मॉफ्लन ये पहाड़ी भेड़ है, और बेजार कोट, और ये छिपकली की एक प्रजाति है गेको, यहाँ पर ये मिलता है. ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट. टेम्परेट सॉफ्टवुड, इनकी लकड़ियाँ बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए इनको सॉफ्टवुड फॉरेस्ट कहते हैं. एंड दे हैव कोनिकल फॉरेस्ट because they have a cone shape, that's why it is known as conical forest. And
they are found in the higher altitude in northern hemisphere. If we divide earth into two equal parts from the middle, then it is found in the northern hemisphere, not in southern hemisphere, in the high altitude also. And do you know the places where the found these temperate softwood forest? The places are high mountains in Europe, North Canada, USA, and snowfall. It is found in the snowfall area where the snowfall is found. Okay, but the snow, because of having the conical shape, the snow, when the snow come, it will go to the downside. It will not stick it. Okay, and they do not shape their leaves. That's why it looks like a green color. Okay, and they have a needle shaped leaves. And the example of these trees, oak means balut, fir, sliver, kedar, devdar, pine, and they have a lot of commercial importance of these trees because they are being used for commercial purpose, just like pulp and plywood. As you know well, ply is used in your bed. That is very commercial importance. Okay, and the animals which are found here, they are Kashmiri stag, बारहसिंगा को बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर एंड एंटीलोप. देखिए टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट है क्या, ये इनका शेप बिल्कुल कोन के आकार में होता है. आप कोन तो पढ़े ही होंगे मैथ में, क्योंकि कोन का आकार होता है, इसलिए जब स्नोफॉल होती है तो इस पर ये कोन, इस कोन का आकार होने के कारण ये बर्फ जो है इससे फिसल जाती है. और ये पाए कहाँ जाते हैं, जो नादर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसके हाई अल्टीट्यूड पर, पहाड़ों पर ये जो है देखने को मिलते हैं. और हाई माउंटेन्स ऑफ यूरोप में भी मिलता है, नॉर्थ कनाडा में मिलता है, यूएसए में मिलता है, और स्नोफॉल ज़्यादा होता है यहाँ पर. और ये अपने पत्तियों को गिराते नहीं हैं, इसलिए हरे भरे रहते हैं. ठीक है, और इनकी पत्तियाँ जो है सुई के तरह होती हैं. ठीक है, और जैसे बलूत का पेड़ है, और फिर है, फर है, स्लीवर है, केदार है, देवदार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस लकड़ियाँ हैं. ठीक है, पाइन है, और इनका ये इतने बेहतरीन होते हैं कि इन लकड़ियों से पल्प बनाया जाता है और प्लाईवुड जो है यूज़ की जाती है. ठीक है, और ढेर सारे एनिमल्स होते हैं जैसे मिलते हैं, जैसे कश्मीरी स्टैग है जिसे बारहसिंगा कहते हैं. ठीक है, स्पॉटेड डियर, ऐसा डियर जिस पर छींट होती है, स्पॉट देखने को मिलता है. ठीक है, और एंटीलोप, हिरन होती है. ठीक है, नेक्स्ट सेफ्टी मेजर्स फॉर प्लांट्स. देखिए बहुत सारा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है इसका. तो जब कमर्शियल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इसका, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स यूज किए हैं. Then what are the safety measures which has been set by the government? Afforestation. It means plant more and more tree, and government had adopted a policy, each one plant one policy, and substitutes have been set up, and government has enforced of laws. देखिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हैं. ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने की बात की गई है. जितने भारत में लोग हैं वो एक प्लांट लगाएंगे ही लगाएंगे. ठीक है, तो ये पॉलिसी अपनाई गई है. और एक सब्स्टिट्यूट खोजा गया है जिसके माध्यम से कोई जो है लकड़ियों को काटे ना. जैसे लकड़ियों को लोग जलाते हैं तो लकड़ियों का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, जैसे एलपीजी सिलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है. नहीं तो लोग लकड़ियाँ जंगलों से काट के लाते थे और इसी पर खाना बनता था. ओके, और बहुत सारे लॉज तो बन गए हैं लोग हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ है. अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो तो बहुत सारे जीव जंतुओं का घर बर्बाद ना हो. ठीक है, और वन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो. और ये हमारे देश के जो पेड़ पौधे होते हैं वो लंग्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ. व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वाइल्ड लाइफ इज कनेक्टेड टू द एनिमल्स, बट द एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, दे आर इंक्लूडेड इन वाइल्ड लाइफ, and it makes our natural ecosystem. It makes our natural ecosystem. And India, the name of animals, black buck, peacock, lion, Bengal tiger is very very famous in Gujarat and Bengal. And in Australia, the animals are found. The name of animals are koala bear, emu,
कोकाबूरा डेड, हाँ, these are the animals which are found in Australia. And when the plants and animals died, then it will definitely enhance the fertility of the soil. Okay, and do you know this time what is going on? Animals are being killed for their meat, skin and horns. And do you know the special fact which are related to elephant? Elephant is being killed for their teeth, because the teeth are being used for making decorative items. Okay, so that's why the animals are verge on extinction. Some animals are verge on extinction, and deforestation is very serious problem. And do you know the animals habitation is the forest, but they have been destroyed by the man. देखिए वाइल्ड लाइफ है क्या? वाइल्ड लाइफ किससे बनता है? वाइल्ड लाइफ जो है जंगली जीव जंतुओं से ही बनता है। वाइल्ड लाइफ जंगली जीव जंतुओं से बनता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कोला बियर हो गया, एमू हो गया, कोकाबूरा हो गया। ठीक है, और यही हमारे नेचुरल इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा भाग होते हैं। और भारत में कहाँ क्या क्या मिलता है, कौन कौन से जानवर मिलते हैं? जैसे ब्लैक बक है, पीकॉक है, लायन है, बंगाल टाइगर है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कोला बियर, एमू, कोकाबूरा, ये सब मिलते हैं। और इतना ही इम्पोर्टेंस नहीं है इन जानवरों का, ये जब मर भी जाते हैं, प्लांट और एनिमल्स जो है मर भी जाते हैं, तब भी ये फ़ायदा करते हैं। ये मिट्टी के ह्यूमस को बढ़ा देते हैं और उसमें ज़्यादा पैदावार होती है। तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस इन जानवरों का है। और लेकिन हो क्या रहा है, इन जानवरों को मार दिया जाता है केवल उसकी मीट के लिए, स्किन के लिए और हॉर्न्स के लिए और उनके टीथ के लिए। इसीलिए बहुत सारे जानवर जो हैं विलुप्ति की कगार पर आ चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिससे उनका घर नष्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनके बचाव के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। देखिए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ एनिमल्स। Now hunting is banned. If any people is fined while hunting, he will be penalized. And government has prepared national park and wildlife sanctuaries. In this series, Jim Corbett National Park has been set up in 1973 for the safety of animals. देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं। इसमें एक पॉलिसी है, अब हंटिंग बैन है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाता है। इसी क्रम में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं और वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया है। ठीक है, इसी क्रम में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया, जो कि असम में बनाया गया था। वो 1973 में बनाया गया था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।